Okay, we are live. Good evening, friends. Welcome to the fifth session of Maharashtrian Cuisine, organized jointly by Better Kitchen Magazine and Directorate of Tourism, Government of Maharashtra. We celebrate our joy with family, friends, and delicious food. The main challenge for the host is to decide for the menu for the party or get together. Maharashtrian cuisines have a lot of variety, which not only satisfies one's taste but also liked by all the age groups. Today we are discussing Maharashtrian cuisine as feast for an occasion with our special Nikhil Chipness. So let me introduce to the Nikhil. Nikhil is the director of Nikhil Caterers. Nikhil Caterers has more than 4 decades of experience in the field of outdoor catering. Nikhil Chipness, who is a business management graduate and LLB from the prestigious Mumbai University, and also holds a postgraduate diploma in the field of event management and a certificate of cookery from IHM Mumbai. He is a committee member of Bombay Caterers Association and the founder member of Federation of All India Caterers as an advisor. So I welcome Nikhil to be with us today and tell us about the topic like feast for an occasion. So here we are welcoming Nikhil with Thanks, our. Ekta, for giving me an opportunity. Thank you, Better Kitchen and Maharashtra Tourism. थैंक यू। तो अभी निखिल हमने 4 सेशन किए हैं जिसमें हमने फिश के बारे में बात किया। उसके बाद शेफ अल्तमश से हमने खानदेशी कुजीन किया और हमने उनसे शेफ नीलेश से हमने घोड़ दौड़ के बारे में बात किया। तो सबने अलग अलग अपनी चीजें बताई हैं, डिफरेंट कुजीन्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज एक नया टॉपिक है कि हम महाराष्ट्रियन कुजीन को हम फीस्ट जो कि होता है शादियों में, पार्टीज में, गेट टुगेदर में, एक ओकेजन होता है, तो कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं महाराष्ट्रियन cuisine को, हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। एंड आई हैव सीन दैट यू हैव स्टार्टेड अ रियली ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और महाराष्ट्रियन पंगत, तो हम सबको उनके उसके बारे में भी बताएंगे, हाउ यू हैव टेकन इट फॉरवर्ड। So let's start with the first question. What is your message for the people to decide while planning a menu for occasion? See, it's I call it menu composition. So how you have composition in music, the menu has to be not only balanced, but it should have different flavors, colors अलग अलग होने चाहिए, okay, taste तो अलग अलग होनी चाहिए. So what happens is these days trend जो है ज़्यादा करके multi cuisine पे है. Abhi you can, what we suggest is, we can go it in two different directions. I am a strong advocate of, the Maharashtrian Pangat, the Marathi Pangat that, most of us are aware of. तो केले के पत्ते पे कीजिए या फिर नॉर्मल स्टील के थाली में कीजिए, या फिर अगर थोड़ा एक्सेस पैसा है तो चांदी के थाली में भी कर सकते हैं. रेंट पे मिलती हैं आजकल, इवन सपोज मेरे ऐसा केटर प्रोवाइड भी कर देगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है. तो उसमें क्या है, उसमें एक अलग अनुभव मिलता है, बिकॉज दीज डेज अगर आप बुफे में जाएंगे तो बुफे में विच इज द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर ट्रेंड, उसमें आपको प्लेट हाथ में पकड़ के हर काउंटर से काउंटर जाना है, सोचना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, फिर आके बैठना है, फिर से आपको उठ के जाना है. तो इधर कैसे, इधर आप आप टेबल पे बैठे हैं, वन बाय वन थिंग्स विल कम योर वे. You can choose whether you want to have it, you don't want to have it. Another thing is that it is, जो प्लेट पे होता है वो या केले के पत्ते पे होता है, उसका एक द वे इट इज सर्व्ड, उसको भी एक कल्चर है, उसको भी एक सिस्टम है. तो लेफ्ट साइड में जो केले के पत्ते पे या फिर थाली में लेफ्ट साइड में जो भी होते हैं वो ऑल आर कॉन्डिमेंट्स. जैसे राइट फ्रॉम नमक, नींबू, चटनी, अचार, वो कोशिम्बीर या कचुम्बर बोलिए, वो सब होते हैं. राइट साइड पे ऑल द वेजिटेबल्स. मोस्ट आई थिंक द लॉजिक इज दैट मोस्ट ऑफ अस आर राइट हैंडेड, तो वो जो मैक्सिमम राइट हैंड किधर जाएगा, राइट साइड पे जाएगा. तो वॉट एवर इज मिनिमल जो लगता है वो लेफ्ट लेफ्ट पे होता है, वो राइट पे, बाकी का चीज सब राइट पे होते हैं. तो ये एक एक्सपीरियंस अलग है. तो आप पार्टीज में अगर आपको एक ऐसी पार्टी है जहां सब लोग एक साथ आने वाले हैं और आपके पास टाइम भी है, तब आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट कि महाराष्ट्र मराठी पंगत का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाता है.
आज के तारीख में यूनिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि नॉट आई वुड से 99% caterers don't prefer to give पंगत because it is लेबर इंटेंसिव, एंड ऑल्सो उसमें जो केटरर खुद है उसको बहुत काम करना पड़ता है। बुफे में कैसे एक बार लगा दिया, उसके बाद में आप वेदर यू आर, का प्रॉब्लम नहीं है हाँ, पंगत में, तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू सर्व, वो गरम गरम आना चाहिए। ऐसे नहीं लोग बोलना चाहिए अरे आया बाद में आया ही नहीं, स्वीट आया एक बार आया उसके बाद फिर से आया नहीं। और तो आप इसके बारे में मुझे बताएंगे निखिल कि हम अगर हमारा कोई छोटी पार्टी है, लाइक गेट टुगेदर है, तो कैसा मेन्यू होना चाहिए? अगर मैरिज है तो कैसा मेन्यू हमको रखना चाहिए, जैसे अकॉर्डिंग टू प्लेट ऑल्सो, कि कई बार प्लेट्स इतनी हैवी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ डिशेज, और कई बार मैंने देखा है जो बहुत सारी डिशेज अगर हम रखते हैं तो पीपल वोंट प्रेफर कि इतना सारा खा के, कई बार खाने भी रह जाते हैं कि हम ये नहीं खा पाए वो नहीं, मतलब आई प्रेफर की सॉर्टेड डिशेस होनी चाहिए। तो अभी कैसा है कि ये जो मैं जैसे बताया कि दो भागों में अगर डिवाइड करें, एक तो पंगत इज एन ऑप्शन, बट पंगत के लिए कैसा है, पंगत के लिए टाइम होना चाहिए और सब लोग एक साथ होने चाहिए। पंगत कैन नॉट वर्क इफ पीपल आर जस्ट कमिंग, 5-5 10-10 ऐसे आ रहे हैं, तो वो पंगत नहीं हो सकती है। पंगत का कॉन्सेप्ट है कि एक साथ बैठेंगे, फिर हम लोग रोज कर सकते हैं कि भाई पहले 20 लोगों का हो गया, फिर अगर बड़ी पार्टी है तो 50 या 100 लोगों का भी एक टाइम सिट डाउन कर सकते हैं। बुफे में कैसा है कि अगर आपने फ्लेक्सिबल टाइम दिया है कि भाई 7 से 10 तक कभी भी आ सकते हैं, तब बुफे इज बेटर इन दैट वे। अगर आप बुफे में जाते हैं तो बुफे में इट बिकम्स इनफैक्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इफ इट इज अ सिंगल क्विजीन, बिकॉज उसमें क्या इनोवेशन देंगे आप। पंगत में कैसा है, पंगत में बहुत सा सिंपल कॉन्सेप्ट है। मेरी एक थोड़ी उसमें एक एक साइकोलॉजी का एक ये है, मेरी सोच है कि जब बुफे में होते हैं तब 50% ही आप खाना एंजॉय कर सकते हैं। द रीजन बीइंग बाकी का 50% का जो टाइम है दैट इज स्पेंट इन chit chatting with people on the table. So what happens is the focus on the food is only 50%. Unless and until the food is exceedingly good, you won't remember the food even after enjoying it. तो अगर आप बहुत बड़े फंक्शन में भी जाएंगे, तब when you come back home and someone asks you अरे आज क्या था पार्टी में, तो you will not be able to tell everything that was on the on the table. बट पंगत में अलग है। पंगत में आप खुद आप बैठेंगे, आपके आजू बाजू के साथ कोई बातचीत होती नहीं, और कॉन्वर्सेशन इज ओनली विथ योर फूड। तो अगर खाना अच्छा बना है तो वो डायरेक्टली इधर तक जाता है, and then the experience is unique, different. You start appreciating each and every flavor. बुफे में कैसा है, अगर आप पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड तो अभी मतलब दैट इज एवरी पार्टी यू विल सी दैट देयर इज अ वेलकम ड्रिंक, देयर आर स्टार्टर्स एंड देन देयर आर मेन कोर्सेज। अभी लाइव किचन का बहुत कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आप जनरली पीपल प्रेफर द पिज्जाज एंड द पास्ताज ऑफ दिस ऑफ दिस वर्ल्ड। काफी लोग डोसा है, पंजाबी है, तो वहाँ किधर महाराष्ट्रन खाना दिखाई देता नहीं है, थोड़ा। तो उसमें मेरा रोल है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि कि ये चीज बदलनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट क्विजीन। और ऐसा नहीं कि लोगों को पसंद नहीं आता, इट्स अ डिफरेंट क्विजीन, पीपल अप्रिशिएट इट, बट दैट it is not seen often. So when you are planning any even a small gathering, all these things are to be taken care ki aapke sab all the things are different. You can also serve Maharashtrian cuisines in a different in a very interesting manner. See, what happens is in a buffet presentation becomes very important, क्योंकि your eyes eat the food first. तो अगर वो बहुत अच्छी तरह से फैंसी वे में अगर पेश किया है तो लोग वो पसंद करेंगे, वो उठाएंगे खाने के लिए। तो जैसे मिनी थाली पीठ है, उस पे ऊपर अगर आपने कैसे खाना अट्रैक्टिव होता है, इसके लिए लोग उसको देख के खींचे चले जाते हैं और फूड वो समझ के एंजॉय करते हैं। हाँ, तो वो अगर तो सोच होनी चाहिए कि कैसे आप अट्रैक्टिव करें, फिर वो कौन से भी क्विजीन का हो। अगर मराठी हो उसमें भी आपको एक इनोवेशन ला सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि मिनी थाली पीठ करके उसके ऊपर ऐसे एक जैसे आप हम सॉस डालते हैं, वैसे ही आप व्हाइट बटर डाल दीजिए, हम लोणी बोलते हैं जिसको, जैसे कॉइन शेप थाली पीठ हो गया। या फिर मैंने बीच में एक पार्टी में ऐसा एक साबूदाना वड़ा किया था, लेकिन वो हार्ट शेप साबूदाना वड़ा, उसमें एक स्टिक डाल दिया था, तो इट वाज लाइक अ लॉलीपॉप। हाँ, तो एक आपको एक अलग तरह से या फिर बेक्ड वड़ा पाव एक नया कॉन्सेप्ट है।
तो ये अगर आप अलग तरह से, और एक one more innovation that we had done was we had served misal as like the way people serve khawswe, right? So misal in the center and other all the condiments like right from the वो जो फरसान होता है या फिर आपके कांदा है, नींबू है, या जो भी है वो अलग अलग उधर है। फिर दही है, किसी को दही मिसल चाहिए तो दही मिसल ले सकते हैं। तो वो अगेन द प्रेजेंटेशन, द वे यू सर्व makes a lot of difference. पूरन पोली अगर आप उधर के उधर बना के देंगे या फिर वहाँ के आप उकड़ी से मोदक हैं वो वहाँ के वहाँ अगर दिख रहे हैं लोगों को कि गरम गरम मिल रहे हैं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो whenever you're thinking of any party menu, think how you can be innovative with the menu at the same time the presentation. Okay. Then Nikhil, second question is, there are many cuisines belong to Maharashtra. Okay. How can one select the best for the occasion? मतलब best आप किसको बोलोगे? Maharashtrian cuisine से जो हम occasion में select कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना कि see there is nothing like best in the first place. क्या है कि every Maharashtrian cuisine is so diverse. You have different cuisines in different regions. अलग अलग प्रांत के अलग अलग रेसिपीज है। इनफैक्ट अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग रेसिपी है। मुंबई में आप देख लो, मुंबई में देर आर CKPs, देर आर पाठारे प्रभुज, देर आर ब्राह्मण्स, देर आर GSBs। अभी GSBs भी मतलब यू कैन से दैट दे आर फ्रॉम गोवा, बट अभी यहाँ कितने सालों से एंड दैट क्विजीन आल्सो नाउ इज अ पार्ट ऑफ मराठी क्विजीन। सो अलग अलग क्विजीन्स हैं और आई कांट से कि कौन सी क्विजीन बढ़िया है। what can happen is जनरली कैसा होता है कि सी नॉन महाराष्ट्रन को कौन सी भी क्विजीन आप दोगे उनको पसंद आएगा, मतलब महाराष्ट्रन क्विजीन, बिकॉज उनके लिए नया है। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर आप होस्ट कर रहे हो, समझो अभी कोई बंदा है जो वो कम्युनिटी का है, तो उसका नेटवर्क वही कम्युनिटी का होगा। तो आई वुड सजेस्ट दैट वो अगर आप पार्टी कर रहे हो या आप ओकेजन रख रहे हो तो वो आपके ही कम्युनिटी का अगर आप खाना रखते हो, again same principle कि it has to be slightly well differently presented and maybe a few innovations here and there, तो ज्यादा लोगों को पसंद आएगा। और उसमें अगर आपको ऐड करना है कोई अलग प्रांत का क्विजीन, मतलब महाराष्ट्र का ही, that also is possible. In fact, one or two dishes like that. Now the people are exploring and they are ready to experiment also. Right. तो हम जो जैसे GSB है या जो दूसरे और है प्रांत के लोग, उनको हम डिफरेंट प्रांत का ही खाना खिलाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सेम तो वो घर में भी बनाते होंगे और अपने उसमें रखते होंगे, लेकिन अगर कोई ओकेजन है तो दे शुड कीप अ डिफरेंट कुजीन फूड सो दैट दे कैन आल्सो टेस्ट, the guests can also take and then they can explore also कि different cuisines का कैसा खाना होगा। तो उस तरह से मार्केटिंग भी होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि कभी बहुत बार क्या होता है कि आप पार्टी में आते हैं, अभी समझो बड़ा पार्टी है, अभी कोविड, बिकॉज ऑफ कोविड यू आर नॉट सीइंग अ लॉट ऑफ बिग पार्टीज, बट समझो अभी 500,000 लोगों की एक गैदरिंग है, देन व्हाट हैपेंस इज द होस्ट इज नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद द गेस्ट। तो caterer has to make sure that the cuisine is presented because the same things are prepared differently in different regions. तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि एक दाड़िम्बी उसळ है, उसको अगर थोड़ा मतलब CKP के लोग करेंगे तो उसको वाला से बिरडे बोलते हैं, राइट? और वही चीज आप कोंकण में अलग तरह से मतलब जो अलग कम्युनिटी के लोग अलग तरह से खाते हैं। जैसे अभी सोल कड़ी है, सोल कड़ी ठंडी भी लोग हैं और कहते हैं, और पाठारे प्रभु लोग वो थोड़ा गर्म भी पीते हैं। तो अभी अगर मैंने एक चीज दूसरे को दे दिया तो वो बोलेगा कि अरे ये बराबर नहीं है इट इज नॉट, हमारे जैसा नहीं है। तो फिर वहां ब्रांडिंग होना चाहिए, वहां लिखा, मतलब द क्विजीन हैज टू बी वेल, मतलब उसमें बराबर से मेंशन करना चाहिए कि दिस इज अ, हाँ, इंफॉर्मेशन वहां होनी चाहिए, तब फिर वो people will understand it कि no, it is different, that is why the taste is also different, and then they'll appreciate it rather than connecting it with how their mom used to make it. Good. Okay. Nikhil, Maharashtrian cuisines have a lot of variety. How can we select the menu for an occasion? ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब आप मुझे बताइए कि हम Maharashtrian cuisines को as a feast for occasion कैसे बना सकते हैं? See, मैं वही मेरा वो जो मैंने I'll continue with that कि the best, see, you have to see that how how different cuisines have evolved over a period of time, especially in events.
तो जैसे अभी लाइव काउंटर्स का जमाना है, एवरीथिंग लाइव किचन है, मतलब लोग पूछते ही हैं कि अरे लाइव काउंटर्स कितने दे रहे हैं। और उसमें फिर क्या है कि जैसे पिज्जा लाइव काउंटर हो गया, डोसा लाइव काउंटर हो गया, वो तो नेचुरली लाइव काउंट मतलब वहां बना सकते हैं, लेकिन अभी खाना कैसे बनाएंगे? अभी बीच में हमने एक फंक्शन में लाइव पूरा पूरा खाना लाइव किचन जैसे किया था, मतलब वहाँ दाल का तड़का भी वहां के वहां हम लोग दे रहे थे। तो ऐसे इनोवेशंस आप अगर बुफे स्टाइल में करेंगे महाराष्ट्र में भी, जैसे पूरन पोली लाइव कैसे दे सकते हैं, या फिर थाली पीठ वहां के वहां हम कैसे दे सकते हैं, या फिर जो थोड़ा इनोवेशन आपको प्रेजेंटेशन में आपको लाना पड़ेगा, और वहां से ही आपको वो माहौल तैयार होगा। दूसरी बात की एक सिंपल ये है कि इट्स नॉट रॉकेट साइंस। अभी ऐसे बहुत बार बाकी के लोग जो करते हैं, या बाकी के क्विजीन आर ओवररेटेड नाउ। लाइव पास्ता काउंटर रखते हैं, पास्ता काउंटर में होता क्या है, दो टाइप के सॉसेज होंगे और 10-15 टाइप के वैरायटीज ऑफ पास्ता होंगे। So there is nothing like pasta counter. लोगों को लगता है कि बहुत दिया, तो why can't we have थाली पीठ with different kinds of chutneys और sauces, right? तो वैसे कुछ तो आप एक्साइटिंग करेंगे तो वो डेफिनेटली इनफैक्ट मेरी तो मनोमन को भी लाइव काउंटर्स देख के मोस्ट पॉपुलर बना सकते हैं हम। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट माय मुझे अगर आपने पूछा कि व्हाट इज योर dream or goal, I would have Maharashtrian, I want to see Maharashtrian cuisines in events happening in Rajasthan, in Hyderabad, because you see that South Indian counter आपको सब जगह दिख जाएगा। आपको महाराष्ट्रियन काउंटर क्यों दिखेगा नहीं? क्योंकि वो सप्लाई भी उसका नहीं है, लोग उन्होंने उतना मतलब अगर आप देंगे तो लोग लेंगे, राइट? तो होपफुली दिस मराठी फूड में थोड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा, पीपल विल एक्सप्लोर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज with a lot of chefs, those who are supporting Maharashtrian cuisine, caterer like you, so definitely will promote Maharashtrian cuisine। और जैसे और cuisines popular हैं, वैसे हम Maharashtrian cuisine को भी popularize करेंगे। Okay, in the buffet, people are asking for different countries' dishes. How we can promote Indian cuisines, particularly Maharashtrian cuisine, to be the part of every party? छोटा सा कुछ डिश रख के या कुछ एक लैविश करके कैसे कर सकते हैं? जैसे एक तो जैसे मैंने वी सी कैसे है कि महाराष्ट्रियन क्विजीन आप जो फास्ट फूड है थोड़ा बहुत पॉपुलर है मुंबई में या महाराष्ट्र में, जैसे मिसळ है या फिर थाली पीठ है, कोथिंबीर वड़ी है, ये थोड़ा पॉपुलर है, तो वो तो चीज डेफिनेटली वेडिंग्स में रख ही सकते हैं। बट इट हैज टू आल्सो बी ऑथेंटिक। आई हैव अटेंडेड वन इवेंट इन राजस्थान वेयर द केटरर्स सर्व्ड महाराष्ट्रियन फूड। इट वाज मतलब उनके लिए ठीक है क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कैसा बनता है, लेकिन देन इट वाज completely, it was absolutely कहना नहीं चाहिए लेकिन rubbish। So I was like, okay, taste and the presentation and food the taste, see the basic taste, what is the essence of food? It's a taste। See, if आपने कितना भी अच्छा presentation किया, खाना अगर अच्छा नहीं है, टेस्ट ही नहीं है, तो मतलब doesn't make sense, right? तो food has to be primarily it has to be tasty। उसके बाद you have to work on the presentation, कैसे innovation, decor is something that you can play a big role। थोड़ा सजाइए खाना, फ्लावर डेकोरेशन कीजिए, या फिर you can play with words। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत से बड़े केटरर्स जो हैं, जो बड़े बड़े प्राइजेस लगाते हैं, वो अलग अलग एक चीज को अलग अलग तरह से लिखते हैं, नाम सिर्फ वही बनता है। फॉर एग्जाम्पल शॉर्मा आप रखेंगे तो शॉर्मा भी बोलते हैं, डोनर कबाब भी बोलते हैं, गायरो भी बोलते हैं। तो अगर द मोमेंट आई से गायरो, पीपल विल थिंक दैट अरे कुछ तो नया है, क्योंकि नोबडी नोज व्हाट इट इज, राइट? शॉर्मा पीपल आर अवेयर ऑफ इट, बट द थिंग इज सेम। So you can play with words, you can play with but presentation could be not just that it has to look nice, it has to also, जैसे पांचों सेंसेस होने चाहिए, आंख भी है, कान भी है, कान से भी सुनने को अच्छा लगना चाहिए। That doesn't mean that you change the name of the dish, but at the same time you can experiment with it। थोड़ा फैसिनेटिंग होगा तो लोग, आजकल का जो टाइम है, आजकल जो डिमांड है टाइम, देखो मेन्यू आदमी पहले मेन्यू पढ़ता है, उसके बाद ऑर्डर करता है। बिल्कुल। तो मेन्यू मतलब वो पढ़ने में भी अच्छा लगना चाहिए कि भाई नहीं, ये तो मतलब ये चीज खा के देखनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Okay. Then what are the dishes we must keep in the menu for kids party or get together? आई बच्चों थिंक के लिए. सी बच्चों के लिए, जैसे मैंने बताया ना कि अगर इफ यू आर टॉकिंग मराठी फूड, देन जैसे मैंने बताया कि जो मतलब यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर देम, राइट? जैसे अगर आपने जैसे एकदम सादा सिंपल, सी दिस इज एवरी क्विजीन इन देयर होम्स, इट इज होम फूड. अभी जो पंजाबी बंदा है वो घर पे उसके लिए सरसों दा साग, राजमे राजमे का ये सब नॉर्मल है, राइट? वो ही इज नॉट बी वेरी एक्साइटेड विद दैट. तो सिमिलरली अगर आपको सी महाराष्ट्रन खाना, नॉन महाराष्ट्रन को आप बर्थडे पार्टी में भी रख सकते हैं, वो नॉर्मल आप थाली पीठ रखो, कोथिमीर रोटी रखो, मिनी बटाटा वड़ा. अभी उसमें भी इनोवेशन है, जैसे मैंने बताया कि एक बेक्ड वड़ा पाव है, राइट? मिसल का अलग अलग टाइप्स का आप कर सकते हैं. तो ये तो पॉपुलर डिशेज है, वो तो आप रख ही सकते हैं. स्पेशली किड्स के लिए जैसे मैंने बताया कि वो दिखने में जरा अलग होना चाहिए. जैसे आपने मैंने बताया कि लॉलीपॉप जैसा आपने साबूदाना वड़ा बना दिया, या फिर साबूदाना वड़ा. बटाटे वड़ा, थोड़ा मीडियम स्पाइसी कर दीजिए, सो दैट स्पाइस लेवल्स बच्चों के लिए ये होते हैं. तो जैसे अभी हमारे इसमें एक ओल्या नारळाची करंजी है, वेरी वेरी गुड डिश. तो अगर उसको जरा थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आपने ये किया, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन फाइनली. तो Presentation. मेन्यू इज यू कैन से मतलब मेन्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों के पार्टी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन. बच्चों को अट्रैक्ट करता है ना, बच्चे बच्चों ज्यादा को किड्स चले नहीं जाते हैं. कैसा है, और उनको अभी अनफॉर्चुनेट है कि द पेरेंट्स ऑफ दिस जनरेशन आर कीपिंग ओनली द लाइक्स ऑफ पास्तास एंड पिज्जाज इन द इनफैक्ट घर पे भी वो अभी वही मांगते हैं, नूडल्स हैं. तो और उसमें कुछ ग्रेट नहीं है. द रीजन बीइंग कि इट्स अवेलेबल एवरीवेयर. सो व्हाट इज न्यू दैट यू आर सर्विंग इन एनी केस. ओके सो आप ये मतलब मैं ये एक पॉइंट लेना चाहूंगी कि नाउ यू आर सपोर्टिंग और यू कैन से पेरेंट्स शुड सपोर्ट ट्रेडिशनल कुजीन इंस्टेड ऑफ गिविंग देम जंक फूड लाइक पास्ता पिज्जा बर्गर. तो उससे हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हेल्दी डिशेस खाना पता चलेगा. वी कैन मेक देम इनोवेटिव लाइक बेक्ड एंड वड़ा पाव एंड और इट्स नॉट अबाउट कि बिकॉज टू वो ट्रेडिशनल खाना है इसके लिए रख रहा हूं मैं, नहीं, नॉट दैट वे. बिकॉज यू कैन मेक इट डिफरेंट, राइट? क्या है कि मैं बोलता हूँ कि मैं इतना ही बोलता हूँ कि वो तो सब जगह मिलता है अभी. हर हर आपको ऑप्शंस क्या है. आप अगर कौन से भी बर्थडे फंक्शन पार्टी पे जाएंगे, पहले जब मैं बच्चा था तब मिलता था वेफर, समोसा, केक, बराबर है, एक फ्रूटी का पैकेट. उसके बाद मतलब थोड़ा इवॉल्व हुआ, अभी बर्गर देते हैं, पिज्जा देते हैं, पास्ता देते हैं, तो और नूडल्स थोड़ा ऐसा कैसा है कि पहले मतलब तो इट इज इजी टू मेक, सेकेंडली इट इज रेडिली अवेलेबल, और कैसा है कि एक दिमाग में बैठा है कि बच्चों को पसंद है. अभी बच्चों को पसंद है बिकॉज वैसे आदत हमने लगाई है, और ऐसा नहीं है कि वो मत कीजिए. My only thing is that you can differentiate in your party. See, food is very important. Anyway, finally you are inviting people, right? And kids के साथ उनके parents भी होते हैं. तो आप अलग क्या दे सकते हैं उनको? तो उसमें आप डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर नॉट ओनली महाराष्ट्र मदर इंडियन क्विजीन्स आल्सो. उसमें काफी ऐसे अच्छे चीजें हैं जो यू कैन डेफिनेटली कीप, एंड उसमें आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. इनफैक्ट बहुत से वेडिंग्स में मैंने वो किया है और लोगों को पसंद भी आया है कि वी हैव नॉट केप्ट एनी सो कॉल्ड इंटरनेशनल फूड. अभी मैं पास्ता और पिज्जा को इंटरनेशनल मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि इतने साल से अभी वो तो स्टेपल फूड जैसा हो गया. सो अदर रीजन्स के फूड जो हैं, जैसे काफी लोगों को महाराष्ट्र फूड मालूम नहीं है, इवन फॉर दैट मैटर गुजराती है, गुजराती क्विजीन भी अभी सिर्फ उंधियो मालूम है, आगे क्या मालूम है लोगों को, बराबर है? करेक्ट. तो उसमें भी ऑप्शंस हैं. तो दैट्स नॉट जस्ट लेट्स नॉट जस्ट बोर आवर friends and the kids with the same old stuff. Yes. Okay. So cooking Maharashtrian recipes are time consuming. So what is the preparation of cooking time for a party of 10 to 15 packs? Very difficult question. The reason being that depend on the menu. अगर समझो मैं एक ऐसे पार्टी नहीं बोलता हूँ, लेकिन गैदरिंग बोलते हैं, 10-15 लोगों का समझो एक इंटीमेट घर पे आप गैदरिंग कर रहे हो. तो समझो अभी हमारे में जो पल्सेस है,
अभी फॉर एग्जांपल जो एक वेरी वेरी पॉपुलर डिशेस दाळिंबी उसळ और वालाचे बिरडे जो बोलते हैं, उसको तो आपको 3 दिन पहले से उसका ये करना पड़ेगा, यू विल हैव टू सोक देम उसको फॉर इट टू स्प्राउट एंड यू नो। तो 3-4 दिन पहले से आपको मेन्यू तो मालूम होना चाहिए, और बाद में उसके प्रिपरेशन शुरू होगा, दैट इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम देयर। ओके, और इफ एवरीथिंग इज रेडी, पहले की प्रिपरेशन, बिकॉज वी हैव टू सेट द मेन्यू फर्स्ट, अकॉर्डिंगली द प्रिपरेशन शुड बी देयर। सो अभी इफ इट इज नॉट इट्स नॉट समथिंग दैट इज जैसे वेरी सिंपल मेन्यू रखना है, ये तो आज पहले मतलब 1 डे बिफोर भी हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट कि कट की मतलब उधर ही चॉप किया, उधर ही वो किया और हो गया, वैसे नहीं है। और 10-15 लोग होंगे या 100 लोग होंगे, प्रिपरेशन टाइम ऑलमोस्ट रिमेन्स मोर और लेस सिमिलर। आपको लेबर बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि क्या है, सिर्फ यूटेंसिल्स, कुकिंग भी करनी है, कटिंग चॉपिंग भी है, तो उसमें हम लोगों का टाइम उतना ही लग जाता है। करेक्ट। सो प्रिपरेशन टाइम जो है वो मेन्यू, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू कीप। ओके, so due to space constraints, how can we manage the traditional setting of food? छोटी सी जगह में भी, हाँ, like अभी कैसा है कि ये स्पेस कंस्ट्रेंट का भी इशू होता है, और टाइम कंजम्पशन का इशू होता है। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आप बुफे में कैसा है कि जैसे कि स्टैंडिंग खा सकते हैं लोग, राइट? एक पंगत में तो आपको टेबल चेयर सब देना ही है, तो वो एक कंस्ट्रेंट है, लेकिन आई विल स्टिल गो फॉर इट। अगर मुझे अपने 2 ऑप्शन दिए तो मैं तो पंगत प्रेफर करूंगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो इनफैक्ट लेकिन उसमें जो है वो कंस्ट्रेंट है तो है। अभी क्या होता है बहुत बार, आई विल टॉक अबाउट द लार्जर फंक्शंस फर्स्ट। जैसे अभी इफ द मुहूर्त टाइम इज 12 के बाद, then I will suggest that keep a buffet if it is a big crowd. If it is a small crowd, then I will suggest that you can break it into a buffet and a pangat together, क्योंकि काफी लोगों को they are in a rush. They are in a, no, I didn't get your question. What did you say? No, I'm saying that आप जो बोल रहे हैं कि we have to we can break them into a buffet or a pangat. People who are in a rush, who want to probably attend some meeting or have work, and they can have it in the buffet. जिसको आराम है और जिसको जो actually foodie है, वो पंगत में खा के will really bless the host कि अरे मस्त खाना दिया। स्पेस कंस्ट्रेंट तो वो इशू है, लेकिन उससे ज्यादा मैं बोलूं कि टाइम का कंस्ट्रेंट ज्यादा होता है, क्योंकि पंगत में टाइम लगता है। आप क्योंकि आदमी बैठा है, आराम से खाता है, तो उसको ज्यादा ही विल अप्रिशिएट इट मोर, बिकॉज वो अगर बुफे में आदमी 15-20 मिनट में खाना उसका हो जाता है, पंगत में आराम से आधा घंटा वो लेगा। और स्पेस कंस्टेंट है तो उसको आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन स्टिल अगर स्पेस है तो फिर आई जनरली प्रेफर पुशिंग माय क्लाइंट्स कि पंगत लीजिए। पंगत एक्चुअली बिग टर्न्स आउट टू बी स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव। लोगों का एक गलत फहमी है कि पंगत चीप होती है, या नो पंगत इनफैक्ट इज एक्सपेंसिव बिकॉज देयर आर मोर पीपल टू सर्व यू। बुफे में पीछे 5 आपने सर्वर्स रख दिए, खत्म बात। लेकिन पंगत में यू नीड मोर पीपल, एंड नंबर ऑफ पीपल अगर ज्यादा है तो हिसाब से they have to rotate, no, because एक के बाद एक डिशेस आपकी आती रहती हैं, and they are serving you hot, right? तो लेकिन उसमें जो मजा है ना, आई विल टेल यू, आई हैव डन सो मेनी इवेंट्स। अभी जैसे कोई शादी में दोनों चीज होती हैं, जैसे कि उन्होंने शादी में महाराष्ट्रन स्टाइल मराठी पंगत का एक कॉन्सेप्ट किया है, और रिसेप्शन में उन्होंने मल्टी क्विजिन किया है। मल्टी क्विजिन में पकड़ो आप 50 से 100 डिशेस हैं, और पंगत में सिर्फ 15 से 20 डिशेस हैं। I will bet on it कि people will appreciate the पंगत more than the buffet, simply because मैंने जो last time जो आपसे बात की थी कि वो एक it's a part of psychology also, कि वो खाना मतलब आपका पेट भरता है लेकिन जी नहीं भरता। बिल्कुल आई एम टोटली एग्रीड विद यू कि पेट भरता है पर जी नहीं भरता। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो उसमें वो जो मजा इसका जो है वो अलग ही है। तो मैं अगर
आपका क्राउड वैसा है, और आपको, और पहले तो ट्रेडिशनल मतलब 20 साल पहले तो भी रेगुलरली था पंगत पहले होती थी। तो पंगत, अभी दिखते, बिल्कुल। अभी तो मतलब I don't know any other caterer who's actually doing pangat. They must be doing it, but then it will be only on special occasion or for special clients, because it is very laborious and Very very little. costly also. Okay. Okay. And is there any cloud kitchen which delivers only Maharashtrian cuisine? Is Very unfortunate. See, you will have a lot of Marathi snacks के जगह बहुत पॉपुलर हैं, राइट? बहुत अच्छी, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, लेकिन फूड इज नॉट जस्ट स्नैक्स. तो आई पर्सनली डोंट नो एनी, स्पेशली वेजिटेरियन फूड. अगर मुझे अच्छा वेजिटेरियन खाना, महाराष्ट्रन खाना मंगाना है, तो आई डोंट नो वेयर टू ऑर्डर फ्रॉम ऑनेस्टली. मतलब देयर माइट बी, एंड नो ऑफेंस टू एनीवन हु इज एक्चुअली डूइंग दैट, बट देन if being a Maharashtrian Marathi caterer and not knowing it, you should you know it says everything that it is not probably marketed well, but the probability of it not being there is also high. So it's unfortunate that Mumbai, being the capital of Maharashtra, does not have one good place where Maharashtrian वेजिटेरियन फूड इज सर्व. नॉनवेज में तो आपको फिर भी मिल जाएंगे, कोल्हापुरी है, मालवणी क्विजीन्स होते हैं, तो वो तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वेजिटेरियन तो आई डोंट नो एनी प्लेस. और अगर होंगे भी तो भी क्या होता है, वो मिक्स होता है. नॉन वेजिटेरियन फूड्स जो प्रोवाइड करते हैं वो वेज भी करते हैं, लेकिन थोड़ा एक प्रकार का, थोड़ा क्या कवर बोलते हैं हो ना, जाता है फिर। नहीं वो इट लाइक कहते हैं ना, सौतेला व्यवहार होता है वेजिटेरियन हाँ, फूड के लिए. वही। थोड़ा ही थोड़ा ही रखते हैं, या फिर इट्स नॉट रियली बहुत अच्छी तरह थोड़ा से. होता है, एक लिमिटेड डिशेस होती हैं फिर हाँ, कि इतना ही। फोकस इज मोर ऑन नॉन वेज इन दैट केस. नॉन वेज, नॉन वेज। हाँ, तो वेजिटेरियन तो है नहीं किधर भी. Okay. Now, our next question is, Maharashtrian cuisines need to expertise to cook, while other cuisines have frozen version of simple recipe, because actual frozen food, you know how much people are using, and it's on trend also. So what are the possibilities of presenting Maharashtrian cuisine as frozen food? See, the first thing is that the food has to reach out to people, right? It has first the job of people like me and people who are passionate about Marathi food is to popularize it. Only when it is popular, people will start having it. अगर समझो मैंने मॉल में कोई, या फिर जिधर फूड आउटलेट्स हैं, वहाँ अगर फ्रोजन आपको खाना महाराष्ट्र मिलता है, तो पीपल शुड नो अबाउट इट टू पिक इट अप, राइट? अभी अगर वेजिटेबल बिरयानी है और मसाले भात रखा है, तो आपको मसाले भात, मतलब आपको, मतलब अरे हाँ मसाले भात लेते हैं, तो वो मसाले भात उतना पॉपुलर होना चाहिए. तो द फर्स्ट जॉब इज टू पॉपुलराइज इट. एंड व्हाई नॉट एवरीथिंग, सी इट्स अभी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बदल रही है, बहुत इवॉल्व हो गए, तो आई थिंक एवरीथिंग कैन बी फ्रोजन. ओके, इनफैक्ट बहुत आई थिंक मेनी पीपल आर डूइंग इट ऑल्सो. फ्रोजन उकड़ी से मोदक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डज इट. एंड काफी ऐसे चीज हैं, लेकिन वो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो उसको मार्केट मिलना चाहिए, पहले सप्लाई बढ़ना चाहिए, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स आएंगे. सी, The पीपल आर product लुकिंग, should be marketed properly. प्रोडक्ट्स फर्स्ट शुड बी अवेलेबल. मार्केटिंग तो मतलब सेकेंडरी आ गया. जैसे फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे अगर मराठी, जैसे मैंने बताया कि मराठी वेजिटेरियन फूड इज नॉट अवेलेबल इन मुंबई, देन वेयर विल यू ऑर्डर इट फ्रॉम? तो फर्स्ट देयर हैज टू बी, देयर पीपल शुड बी. और कैसा है कि इट इज नॉट अ सिंपल थिंग, मतलब मैं बोलूं कि मुझे करना है और इट डजंट गो लाइक दैट. इट लॉट ऑफ कॉस्ट इज इन्वॉल्व. कल अगर किसी पैशनेट फैमिली है, एक बंदा है जिसको महाराष्ट्र खाना बनाना है और सर्व करना है, तो उसको इट्स नॉट इजी बिजनेस. लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट है, क्लाउड किचन में इन्वेस्टमेंट है. सिर्फ क्लाउड किचन नहीं है, आपको ट्रेन शेफ्स रखने हैं. ट्रेन शेफ्स अवेलेबल किधर है? मराठी फूड बनाने वाले अवेलेबल किधर है? सो whoever is starting it, मतलब इट्स नॉट वेरी इजी. आपको बहुत बड़ी एक चेन सेटअप करनी है. आज होटल मैनेजमेंट में मराठी फूड सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता है. अगर सिखाया जाता भी है, और मैंने किया है, इट इज एब्सोल्युटली नॉट ऑथेंटिक. सो और कैसा होता है कि बना बना के आदमी सीखता है.
बराबर है। तो अगर आपको बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलने वाला नहीं है तो आप सीखेंगे कैसे? तो देन यू आर डेफिनेटली देन आप यू आर मेकिंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द यू नो सेम डिश एंड पीपल विल नॉट अप्रिशिएट इट, कोई खरीदेगा नहीं। So it's a big chain. So a lot of effort has to be put in. I'm always up for it. We had, few years back, me and my friend had done, created a group whereby we tried to get together a few Marathi food entrepreneurs. हमने वो नाम भी अच्छा रखा था, खाद्योजक करके, लेकिन it didn't happen, nothing happened out of it. कि we thought, उसमें था कि let's see how government can support us in, थोड़ा कोई भी बेनिफिट मिले तो भी एक रिस्क आदमी ले सकता है। तो Definitely, I'll set up a meeting with अपना Maharashtrian tourism और हम उनको बोलेंगे कि हमको promote करना है। So I know they are very good and they definitely will help us out. Yeah, and I'm hoping that जो एक ये जो मतलब it is this cuisine is it is I would say that it deserves and it is क्या बोलते हैं ना कि उसको जस्टिस मिला नहीं है, क्योंकि सब चीज सब लोग ट्राई अलग अलग ट्राई करते हैं। आपको बंगाली फूड भी आपको मुंबई में मिल जाएगा, महाराष्ट्रन खाना आपको इजीली सब जगह मिलेगा नहीं, एज अ ब्रांड तो इवॉल्व हुआ ही नहीं है वो, एंड वो करना है, वो करेंगे लोग। मतलब आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स एटलीस्ट इन द मराठी फूड। Very good. Okay, and now I'm coming to your जो आपने स्टार्ट किया है, तो how is the response of your Pangat campus? How many dishes are you serving? First of all, the audience, I want to introduce that about the Maharashtrian Pangat, with Nikhil has started. It's a different and beautiful concept. तो आप सबको इंटरेस्ट आएगा, तो प्लीज लिसन केयरफुली. नाउ ही विल टेल अस दैट हाउ ही स्टार्टेड his very beautiful concept and very tasty food also, Maharashtrian Pangat. तो आप बताइए मुझे कि निखिल आपका रिस्पॉन्स कैसा है and how many dishes you are serving in that Pangat? So the response has been unimaginable. I actually was overwhelmed. थोड़ा स्टोरी बताता हूँ इसका. So जब ये शुरुआत की थी तो कैसा हुआ था कि you know that our industries has suffered the most in the pandemic, and जब भी वो विंडो खुलता था कि अभी आप शादी कर सकते हो या फिर इवेंट कर सकते हो, तो वो दिनों के लिए एक्टिविटी था, उसके बाद फिर से बंद. तो आफ्टर February this year really it was like staff बैठा हुआ है, we had the stress of making the salaries, और future अभी भी मालूम नहीं है, तब तो मालूम था ही नहीं, और weddings were getting cancelled, they were getting postponed. So एक जो निराशा का माहौल होता है वैसे था, और एम्प्लॉइज अगर आते भी थे ऑफिस में तो दे यूज्ड टू जस्ट सिट डूइंग नथिंग. तो मतलब करेंगे क्या, घर पे उनको भी बोर होता था, वो बोलते थे कि यार घर पे बैठ के क्या करें, लेकिन ऑफिस में आके भी क्या करेंगे, अगर काम ही नहीं है तो क्या करेंगे, अब कितना उनको बोलेंगे. और वो मतलब ऐसे नहीं कि रिसर्च, लेट्स डू अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसे कॉर्पोरेट जैसा होता नहीं है, कि तो एक दिमाग में था कि कुछ ना कुछ तो करेंगे. तो व्हेन वी वर थिंकिंग अबाउट इट कि क्या करेंगे, तो आई सॉ दैट एवरीवन इज सब कोई ना कोई तो फूड बिजनेस शुरू कर रहा है. होम शेफ्स इतने आ गए हैं कि कोई हर घर में होम शेफ हो गए, और वो दे आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट क्विजीन्स, राइट. So I thought they are making very good food. They are very effort, yeah. They are but nobody was touching Marathi food. तो मैं बोला कि let us it's our expertise, why not do something like that. But at the same time I was very I also knew that this food, मतलब I don't have the infrastructure like a restaurant where किसी ने मुझे फोन किया, बोला अरे मुझे 1 किलो मसाले भात चाहिए, या फिर मुझे can I have 2 plates of sabudana vada या थाली पीठ. No, that's not possible with me, because we don't have that kind of infrastructure. We are bulk caterers, हम 500,000 लोगों का catering करते हैं. तो एक सोच है कि ठीक है चलो let's at least curate a menu and then do it for
से 25 पीपल 50 पीपल ऐसा करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज मेन्यू रखते हैं, ऐसा कुछ तो करते हैं, ऐसा सोच रहा था, और वो मराठी में ही करना था, महाराष्ट्र मराठी फूड में ही करना था। तो फिर कैसा होता है कि आई you can say I got lucky, but I have a definition, I have a formula for luck. So Okay. luck, see, what is luck? Luck equals to opportunity plus preparedness. Unless Correct. and until you are prepared, even if there is an opportunity, you will not be lucky. Lucky. तो एक था प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि इतना साल से हम लोग ये इंडस्ट्री में यही चीज कर रहे हैं, एंड देन देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी इन फॉर्म ऑफ वन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड्स, मिस्टर कसबेकर हैड हिज सन्स वेडिंग। अभी उनका पैंडेमिक में 100 लोगों का कम से कम होने वाला था, वो हो गया रिस्ट्रिक्टेड, 20-25 लोगों तक आ गया, वो भी 2 घंटे में करना है। अभी ही वाज लाइक दिस इज नॉनसेंस, ही अगर normal situation may he would have had more than 500,000 people. So he called me, said that we have to do something about this, and then he told me ki, can we send food to our guests? So बोला कि I have been working on something similar, why don't we do this कि let me curate a menu for you and we will send it entire, right from जो महाराष्ट्रियन खाने में चटनी कोशिम्बीर से लेके बाद में खाने के बाद जो पान खाते हैं वहां तक सब चीज हम लोग भेजते हैं, एंड देन एक केले के पत्ते भी भेजेंगे, और एक अच्छी तरह से अच्छे पैकिंग करके हम लोग हर घर में पहुंचा देंगे। तो अभी कैसा था, सोच थी, माय ओनली कंसर्न वाज द लॉजिस्टिक्स एंड द पैंडेमिक का इतना वो इट वाज वी वर एट द पीक ऑफ द पैंडेमिक। तो आई वाज आल्सो स्कैर्ड कि ये टाइम पे गेटिंग इन टच विद द एम्प्लॉइज, बिकॉज ऑनेस्टली नोबडी इज सेफ। अगर घर मतलब आप सिर्फ वो टाइम पे तो ऐसा था कि आप घर पे हो तो सेफ हो, बाहर गए तो इट्स रिस्की, बट देन आई सेड कि थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। और एनीवेज दैट फैमिली हैड कॉल्ड मी, दैट फैमिली हैज we know them so for such a long time, they have given us work for so many years. So I said that I'll take a day or two and get back to you, and I said yes. My main fear was logistics, कि इतने लोगों का अलग अलग पैकिंग करके कैसे भेजने का है, किधर मतलब उनका रिक्वायरमेंट भी ऐसा था कि किधर 4 लोगों का भेजना है, किधर 5 लोगों का भेजना है, किधर 6 लोगों का भेजना है। तो वो सब थिंग, और एंड आई एंटिसिपेटेड इट, and fortunately my business management skills came to help me. We managed to get delivery partners, and then we एक है कि we did it because it was for a wedding, we did it very aesthetically perfect. So उसमें एक अच्छे तरह से एक मेन्यू कार्ड भेजा था, वो मेन्यू कार्ड उन्होंने ही डिजाइन करके भेजा था, लेकिन इट वाज वेरी वेल डन। केले के पत्ते, गुड जूट बैग, उसमें सब चीज, और एक डेकोर बॉक्स भी भेजा था उसमें हमने कि जैसे तो एंटायर पॉइंट वाज दैट कि you are part of a celebration, you and we had written a note that please dress up in your wedding the best clothes, and have lunch to, with us, if not together, but at least at the same time. तो ऐसे we sent, Maharashtrian cuisine. So in that way, हाँ, you have promoted Maharashtrian cuisine also. तो मैंने ऐसे मैंने ऑलमोस्ट 60-70 हाउस होल्ड, मैंने 250-300 लोगों तक पहुंचाया था। उसके बाद उसका सक्सेस देख के लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड मी, अरे I have one of my friends called me from UK, said that I have my 10th anniversary and I'm stuck in UK, otherwise my family would have been with me. Why can we do something like what you did for that family? I said okay, and we sent it to around 25 families for them. ऐसे करके 3-4 हो गए। और ये दौरान मुझे बहुत लोग फोन कर रहे थे, कैन यू सेंड दिस पंगत फूड टू अस फॉर जस्ट वन फैमिली। आई सेड पहले मतलब तो एक ऐसा है कि केटरर का एक ईगो रहता है कि अरे 50-100 के नीचे तो हम लोग काम ही नहीं करते, तो 100 लोग तो कम से कम होना चाहिए। इधर मैं बोला कि 3 और 5 लोगों को कैसे भेजूं। तो हमने एक डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं कि इतने इंक्वायरीज हैं तो एक दिन लेट्स फिक्स अप वन सैटरडे, एंड तब हम लोग पोस्ट करते हैं फेसबुक पे या फ्रेंड जिन्होंने इंक्वायर किया कि अभी हम लोग वी आर पुटिंग अप दिस मेन्यू, whoever wants to order you can order. Response was so much that we extended Saturday to Sunday. तो और उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे संडे ऐसे करते गए, एंड अभी तो वीकली कोई ना कोई तो फोन कर रहा है। और द इंटरेस्टिंग पार्ट इज लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ओवरसीज आर कॉलिंग saying that I want it as a surprise to my parents, it's their birthday anniversary, या फिर
The best part is you're talking about promotion of Marathi food. The best thing is happening is a lot of people are sending it to their non-Marathi friends as see the pricing is such that आजकल आज की तारीख में अच्छा बुके अगर फ्लोरल बुके आप भेजोगे तो 1,500-2,000 वैसे भी जाएगा. My pricing is also such. Can you hear me, Nikhil? I think sound. Hello, can you hear me, Nikhil? I can't hear you. Check some sound problem from your side. Hello. Yes, now it's fine. Yeah. So तो I was निखिल saying. आपको ये पंगत है, इसमें आप कितने डिशेस सर्व कर रहे हैं इन टोटल? So it is 18 to 20. You can have it more. Abhi, I'm happy that more and more people are also doing something similar. लेकिन अभी उसमें वो मतलब कॉन्सेप्ट वही है कि मैंने 18-20 आइटम रखे हैं, उन्होंने थोड़े ज्यादा रखे, तो उसमें नमक और नींबू भी एक ऐसा आइटम है, तो मतलब कि हाँ, तो दैट्स नॉट फेयर. नमक और नींबू को यू कांट हैव इट लाइक डिश. डिश शुड बी व्हाट यू मेक. आपने जो बनाया है वो डिश होती है. So generally 18 to 20 is what right now we are doing. You can have it more also. If it is a customized, then probably पंच पकवान जैसे 5 sweets भी दे सकते हैं. The choice will be absolutely up to the customer. But standard में 18 से 20 है, कभी 19 जाता है 18, तो वो it is packed in microwavable containers, and they are sent professionally in a proper सब packing करके. We make sure that it reaches between 11 to 1, so you can have it for lunch. And आप मतलब पहले केले का पत्ता है, तो देयर इज नो मतलब वो झंझट नहीं है कि वॉश करो, ये करो, मतलब बाकी खाने के बाद यूटेंसिल्स क्लीन करना है, वो सब नहीं करना है. मैं ये सबको ये बताना भी चाहूंगी कि आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस Maharashtrian Pangat from Nikhil, because that comes in a beautiful jute bag and a beautiful packing. कि उसमें हमको banana leaves भी आती हैं with every clean and neat, and the packaging is superb. That is a spill proof with a lot of hygiene mentioned, and हर एक चीज इतनी नीटली पैक्ड है कि आप हर जगह पे उसको अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं घर के लिए. And there is one DIY box also where he has sent me this rose petals with floating candles that you can make a decor. You can create a room that like a candlelight dinner with your family, and that food serves on depends कि आपके 4 people है, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, and the food is so tasty. And I can name some of the dishes which Nikhil ने भेजा है मुझे ये कार्ड. You can see this. And इसमें है हमको खमंग ककड़ी, चटनी, वालाचे भिरडे, वडीचे सांबर, भरली वांगी, दही वडा, and ओल्या नारळाची करंजी, मसुरांची खिचडी, then लोणचा, आलू वडी, and many more. So I request the audience that you should try this Marathi Pangat and please promote Maharashtrian cuisine, Marathi food. And Nikhil is doing such a lovely work, so please support and उसको हम लोगों को encourage करना चाहिए कि उसने इतने अच्छा एक concept लेके आया है. मैं हम ओवरसीज के लोग वो यहाँ बैठ के भी उनको टेंशन नहीं है कि हम अपनी फैमिली को कैसे फूड वो पहुंचा सकते हैं. So Nikhil is our savior in this, and he has started a very good thing, Marathi Pangat, and really Nikhil, I have loved it, and it's just like that. ये सब खाना हम घर का बना हुआ खा रहे हैं. Doesn't look like not more oily, not very spicy. Means total मतलब proper authentic Maharashtrian cuisine मैंने टेस्ट किया आपका. So I request the audience also, so please. एंड महाराष्ट्र टूरिज्म मैं बोलूंगी कि आप लोग प्लीज आप निखिल से एक बार टेस्ट करिए उसका, बहुत अच्छा है ये. ओके निखिल, देन वी आर जंपिंग इनटू द न्यू क्वेश्चन. तो व्हाट आर द चैलेंजेस? जैसे आपने बताया कि एक लॉजिस्टिक का मेन प्रॉब्लम था,
जिसमें आपको थोड़ा फियर था कि इसमें सबसे बड़ा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें अभी फॉर एग्जांपल जो 18 19 20 जो डिशेस है वो बनाने के हैं और आपको टाइम पे डिलीवर करना है। 11 से 1 में अगर आपको डिलीवर करना है तो उसका वो खाना जल्दी बनना चाहिए, वो जल्दी बने तो लेकिन खराब नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि आपको वो और वो पैकिंग ऐसा है कि जैसे मैं अभी मेन्यू कार्ड देता हूँ तो नथिंग शुड बी लेफ्ट आउट, राइट? कोई भाई गलती से एक डिश भेजा ही नहीं, हाँ, और ये बहुत ये इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। वो हो सकता है क्योंकि आप मतलब आपका स्टाफ भर रहा है तो गलती से उसने एक से पूरन पोली लिखा है लेकिन पूरन पोली गई नहीं, ऐसा हो सकता है। तो इनफैक्ट इसमें मैंने आई वांट माय मेन थिंग इज टू प्रमोट दिस विद नॉन मराठी पीपल। सो मैंने ये ऐसा भी मेन्यू रखा है जिधर जैन भी ले सकते हैं, जैन कम्युनिटी। तो जैन नॉन जैन अभी जब होता है तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि देखना कि जैन लोगों को नॉन जैन नहीं जाए, वो ट्रस्ट से आपको दिया है उन्होंने काम। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इट हैज टू गो इन द राइट, जो जैसे आपने पैक किया है वैसे ही वो उधर पहुंचना भी चाहिए। सो उतना यू हैव टू बी डिलिजेंट विथ ऑल दीज थिंग्स, टाइमली डिलीवरी एंड ऑल्सो फूड हैज टू बी वेरी फ्रेश। क्योंकि क्या है, बहुत जल्दी बनाया आपने और बाद में आपने बेचते बेचते देरी हो गई, खराब हो सकता है। क्योंकि ये रेस्टोरेंट जैसा नहीं है, क्योंकि मैं तो इधर मुंबई आई एम कवरिंग मुंबई, थाना, नवी मुंबई, ऑल 3 रीजन्स, बिकॉज वहां से काफी जगह से इंक्वायरी आती है। तो माय एफर्ट इज टू मेक श्योर दैट फूड इज नॉट अभी कोई सुबह का खाना शाम को खाएगा तो शायद हो सकता है, लेकिन अगर सुबह का खाना सुबह ही खाएंगे तो सेंडिंग फ्रेश फूड, क्या फ्रेश या फूड सर्व कर तो रहे हैं। उसमें थोड़ा इनोवेशन। सून निखिल विल बी बैक। सो आज हम देख रहे हैं कि निखिल जो कि एक केटरर भी हैं हमारे साथ, आज हम उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उन्होंने अपना नया कॉन्सेप्ट जो कि महाराष्ट्रियन फूड को वो प्रमोट कर रहे हैं मुंबई, थाना, नवी मुंबई, एंड पीपल आर लविंग इट एंड रियली दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट द फूड इज रियली वेरी गुड। तो महाराष्ट्रियन, नॉन महाराष्ट्रियन, जैन, नॉन जैन, जो भी है, प्लीज एक बार आप ट्राई करिए। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एट योर होम। People still thinking to go out and have the experience in the restaurant or some ethnic setting type of. So you can create same thing at your home and just please try lovely food. और आज निखिल ने बताया हमको कि किस तरह से हमको मेन्यू प्लान करना चाहिए, तो प्लीज कीप इट इन माइंड. Nikhil is back with us. Yeah. So, Sorry. okay. So I was saying that all these things are very critical, and I'm looking at innovation as to how that lead time can be minimized and how we can, because अगर ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है तो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी. Correct. क्योंकि और कैपेसिटी तो वो हिसाब से, और whoever is planning to get into something like this, you have to understand that it is not a job of one or two people. A lot of people get involved. मतलब अभी कम से कम 10-15 लोग मेरे पास काम करते हैं, तो वो हिसाब से that is the reason we are able to pull it off. Otherwise it's not a cakewalk, because there is a responsibility towards the freshness, time, everything. Okay. So Nikhil, in this era of fusion and global food, why have you launched a traditional concept? ऐसा क्यों? ऐसा था ना कि as I mentioned that in fact वो अभी जैसे मैं बताया कि प्रोडक्ट वही, पैकेजिंग अलग अलग करके बेच रहे हैं लोग। जैसे मैंने बताया कि एग्जांपल ऑफ शॉर्मा और गाय रोज एंड डोनर कबाब। और कितना एक्सप्लोर करेंगे, कितना एक्सप्लोर। आप रशियन फूड, कोई मैंने देखा था रशियन क्विजीन बेच रहा है। मतलब रशिया में गया भी है क्या वो आदमी देखने के लिए कि कैसा है रशियन फूड? So when you have such a diverse cuisine, मराठी में एक very famous गाना है, घरात हसरे तारे मी पाहू कशाला नभाकडे. So when there are stars here, तो मैं why should I look in the sky? So अगर आपका cuisine इतना diverse है तो वो आप कर सकते हैं, and that is for every cuisine. मतलब जो इंडियन cuisine है उसमें इतना possibility है, potential है, और what you require is just थोड़ा आप
अलग सोचिए थोड़ा, मतलब इट्स नॉट दैट वो आपने अगर थोड़ा ट्विस्ट दिया उसको वही क्विजीन को, तो इट कैन बी अ ग्लोबल क्विजीन. व्हाई कैन नॉट महाराष्ट्रियन फूड बी अ ग्लोबल क्विजीन? आप इटालियन फूड जो है, इटली का पॉपुलेशन क्या है? एम आई सीइंग? ओके, No. सॉरी, अगेन आई वेंट. कैन Yes. सो आई वाज सेइंग दैट पॉपुलेशन ऑफ इटली क्या है, महाराष्ट्र का इतना पॉपुलेशन है. Italian cuisine has a globe, and what is so special about it? It is. I'm not demeaning any cuisine. It's fantastic. Pizzas are awesome. Other pastas and everything. It's good, but and I'm not even comparing. But if that country का cuisine इधर उधर जाता है, सब जगह जाता है, तो Maharashtrian cuisine हमारी जा ही कंट्री का सकता क्यों है. नहीं? What बिल्कुल बिल्कुल. what is it? See, तो and people आपकी want जो more, फंगस है, options. यस, तो आपकी जो People want to फंगस है, explore आपने जो options. Yeah. स्टार्ट किया है, उसमें जो आपका लव है टुवर्ड्स महाराष्ट्रियन फूड, मराठी फूड, वो पूरा झलक के आता है कि आपने कितने अच्छे से Absolutely. उसको मैनेज किया. I'm I'm passionate towards this kind of food because मैं मेरे घर पे एक जोक होता है कि मैं बाहर कितना भी खाऊं, मैं घर पे आके थोड़ा बहुत तो खाऊंगा ही क्योंकि आई जस्ट कांट. मुझे वो जैसे रेगुलर अपना वो जो चपाती और सब्जी या जो भी है वो लगता ही है. आई कैन नॉट आई बिकम मिजरेबल इफ आई गो अब्रॉड एंड नॉट हैव इंडियन फूड और मराठी फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो Yes, yes. Okay. So, Nikhil, what is the future that you see for Marathi food? see, I see great future. I'm optimistic, and more people should think of how. See, if your goal is huge. See, I'm not restricting myself कि मैं मतलब कि मेरा ही नाम होना चाहिए या फिर मेरा ही सब जगह. I should have a chain of Marathi outlets, everything. See, that is too narrow minded according to me. क्योंकि क्या है कि कितना मतलब कितना दौड़ोगे आप? Right. अगर मतलब I would love to be everywhere. I'm not denying that. But see, मार्केट बड़ा होना चाहिए. क्योंकि क्या है कि जैसे आज एक दूसरी हम लोग इंडस्ट्री देखते हैं. जैसे आप स्पोर्ट्स में देखिए, आज अगर 5-6 मेडल जीतने के बाद, आज किधर हम ओलंपिक्स 7 मेडल जीते हैं, 1-2 मेडल जीतने के बाद वो जो जीतने वाले के उनको एक वो 15-20 दिन में जितने पैसे मिलते हैं उतने मिलते हैं. उसके बाद उनका सब ठंडा पड़ जाता है. नोबडी इवन नोज देम. हॉकी Yes, का yes. देख लीजिए. हॉकी के अनफॉर्चुनेट है, हॉकी का एक भी प्लेयर का नाम मुझे तो मालूम नहीं है. द पॉइंट इज दैट. लेकिन क्रिकेट का देखिए, क्रिकेट का आईपीएल का प्लेयर या इवन आज के तारीख में सबको पता है. जो लीग्स है, मुंबई लीग्स है, दे आर आल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. व्हाई? बिकॉज क्रिकेट हैज अ मार्केट. Market. Okay, cricket gets opportunities. Cricket gets a lot of sponsorships. So similarly, आप पंजाबी फूड देखिए, साउथ इंडियन फूड देखिए, आप चाइनीज इटालियन देखिए, मार्केट है. आज मुंबई में ही देखिए कितने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, कितने पंजाबी रेस्टोरेंट्स हैं, कितने चाइनीज रेस्टोरेंट, सब चल रहे हैं ना. सब चल क्योंकि रहा है. मार्केट है. क्योंकि मार्केट है. आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. फ्यूचर इतना बड़ा है कि मैंने एक जस्ट एनालिसिस किया था. मैंने जस्ट एक किसी ने मुझे कंपटीशन के बारे में पूछा था, तो मैंने एक सिंपल उनका लॉजिक बताया कि मतलब कि आज मुंबई थाना और नवी मुंबई पकड़ते हैं, कितना टोटल पॉपुलेशन है? एक पकड़ो 2-2.5 करोड़ का पॉपुलेशन है, ठीक है. उसमें फैमिलीज कितने? चलो 50 लाख फैमिलीज पकड़िए, ठीक है. लेट्स से दैट 1% लोगों के पास हमें पहुंचना है, बराबर है. 1% इज 50,000 फैमिलीज. आज मैं समझो कि मैं आज 5,000 फैमिलीज तक पहुंचा एक साल में, तो मुझे फिर भी 10 साल लगेंगे. Correct. मुंबई थाना और इसमें ही इतना पोटेंशियल है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1%. ओके, अगर 10% बोलेंगे तो फिर मुझे 100 साल लगेंगे पहुंचने के लिए. 100 साल. Correct, correct. or else I'll have to do 100 times of what I am doing currently. So there is a lot of potential. Forget about out of Mumbai, in Mumbai itself. And as you mentioned earlier कि frozen foods है, ये है वो है. आज we should, the government should promote, they should give some subsidies for people who are venturing into authentic Marathi cuisine. And because of
see, it's one thing about making money, but we are not only we are promoting the culture. मराठी कल्चर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं. दिस इज आवर वे ऑफ लिविंग, राइट? Correct. सो वो Yes. प्रमोट कर रहे हैं. आप अदर सिटीज में अगर हम प्रमोट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो हमें फेस्टिवल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज दीजिए. गिव अस स्पेस फॉर सम प्रीमियम, जो जिधर हमारा नुकसान नहीं हो. देयर आर मेनी पीपल विल कम अप एंड ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगा खाना ये. और इवन इंडिया में ही हम लोग प्रमोट कर सके तो फिर बाहर जाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. Correct. No, no, it's a very good idea and very good thoughts. I respect your thoughts. I loved it. That. So, आज निखिल के साथ हमको बात करके बहुत अच्छा लगा and निखिल has shared a lot of things with us जो कि हम लोगों को पता नहीं थी कि किस तरह से केटरिंग बिजनेस और किस तरह से वो मराठी फूड को कर रहे हैं और क्या क्या challenges आते हैं, ये हम लोगों के normal people we cannot imagine only. But Nikhil has shared a lot of things with us. So thank you audience for all your support. This was our last live session in this series. We will come again with new and interesting topics and with new speakers soon. So thank you once again, the Directorate of Tourism, Government of Maharashtra, and Nikhil Caters, for giving us this opportunity to create awareness of Maharashtrian cuisine. So thank you so much, Nikhil, for being with us and your message to our audience. Firstly, thank you, Mark Kitchen, Maharashtra Tourism, all of you too, for having me here. And my message is very simple. Just keep order from Marathi entrepreneurs, taste Marathi food, but definitely go for authentic Marathi food. So and hopefully that times will change. We'll be living in a COVID-free environment probably, and enjoying all cuisines, going to the restaurants and everything. So hope for the best. Yes. Thank you. Thank you once again, everyone. And Thank see you. you soon. Thank you. Bye. Thank you.